بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان في الميزان وأقيموا My greetings to the members of the media. My greetings. Major Andy here for the first meeting of the institution. We have there are all staff. On 4th November 1954, sir, the foundation stone of the institute was laid. Last year, on the same day, we inaugurated the first of Major Andy Jha, and we are honored with your presence, sir. We request you kindly offer the father. You can put us to work, sir. Jayal. Yeah, sir. You were from which out of the country? That's why I'm from this side. And the right the rest of the country. So he was a founder principal, and unfortunately he lost his life on an expedition on Mount Chuni in the year 1964. And Mount Right. to help all the people. Give small initiative to support the people who are in need. It's a small step that can save a big life.
And these days, social media is being used to secure blood. If anyone is in need, you have got many volunteers. Thank you very much, sir. Ninety-four. Thank you. Ladies and gentlemen, His Excellency is releasing the quick response team which contains the telephone number of the volunteers. Today, next program, the event of the day, that is the तालियों खाते नहीं होनी चाहिए. That gives such a boost to the encouragement. Mr. Rajkumar Rai, who secured second position. Mr. Rajkumar Rai from Darjeeling. And lastly, Mr. Isaac Rai from Kalimpong, he secured third position. Mr. Isaac Rai from Kalimpong. Your Excellency, the event has also been glorified by the participation of veterans. He is 60 years, 4 months old. On this auspicious day, we'd like to felicitate him. Honorary Flight Lieutenant Nizamuddin. He is also an avid cyclist and he steered, and he was also a part of 2005 Indian Air Force Everest expedition. Your Excellency, we have Master Niwang Lepcha, the youngest participant of the race, a 14-year-old from Kalimpong. And to ride his 12 years old.
to be ever cherished, to be present here on this particular day. I will ever remember it. Group Captain Jai Kishanji, Principal HMI, his wife Srimati Nipur Sisodia ji, energetic Vice Principal, who has been very kind to me by introducing me the way he did. Siddharm Devarai, IFS Director Zoological Park. I recognize with lot of fervor and satisfaction presence of Jamning Tenzing Norgeji, First Lady Srimati Sudesh Dhankar, Shri Satish Tiwari, Additional Chief Secretary and Secretary to the Governor, members of the staff of HMI, ladies and gentlemen, and members of the media. I have a strong emotive connect with HMI. Though this is my first visit here. When I was admitted to Sainik School Chittorgarh, HMI conducted a program. And they got students from Sainik School Chittorgarh also. My elder brother Kuldeep Dhankar was also a student in the school then. He was a little more fit than I was. He was selected to be at HMI. I narrowly missed it. I carry impressions of HMI then and the badge, and he ever projected it while he was a student at Sainik School and even now. HMI is unique. It inspires and motivates human genius, and rightly said, from one peak to another peak. Our first Prime Minister laid the foundation stone, and the current Prime Minister is enhancing all those aspects even at a global level. If the Prime Minister of the country indicates with great emphasis what fitness is, I am sure the nation is bound to be on a very healthy route. The entire world overwhelmingly came to recognize yoga, and we now have an international celebration of yoga. But HMI has attained a major milestone by going to a peak away from this country and having yoga there. I congratulate the management and those who accomplished it. Activities of HMI carry a lot of significance, particularly for the times in which we live. COVID has jolted us as never before. This invisible virus attached to no ideology, committed to no country or race, has impacted living beings, focusing on human species. The whole world has been stressed. Even during this stressful, challenging period, if this could be organized
hats off to you. Hats off to your commitment, to your direction. And I have no hesitation in saying HMI capsules the spirit of the people for whom the world knows Darjeeling and hills. That spirit I can see in evidence here. Your enormously talented principal was telling me how difficult it is, mountaineering, trekking, and then bicycling. Of the state, I know every curve is very difficult. But for me, the curve is more in law, more in constitution. But for the participants, the curve got them very close to everything. I am so glad it happened the way it happened, wholesomely. Not only HMI is involved with the core activity, it is impacting the society massively by engaging in other activities also. Go green, a soothing concept, a need of our times. HMI has done its bit. I am sure it will be on the rise. But what we need in these times is that our youth must be motivated in most affirmative mode to give back to the society, to serve a societal cause. And I had the occasion to see a small step that will have big impact. Quick response mechanism. Just imagine if it catches, it's bound to catch it. It will do so many things. And one, it will connect youth to rise to the occasion and have that attitude for which for thousands of years our civilization has been known. We need to rediscover it with the same kind of commitment and fervor. I would also indicate that this particular area of the state of West Bengal carries global image on account of the rich human resource it has, enormously talented people it has, their courage, their conviction, their attitude is historically recognized and saluted. The tea industry has given us a new niche in the world, tourism, and HMI has added its name to this particular venture, and I am sure it will go a long way. As governor, I do not control finances to a level that I can lend fiscal strength to an institute like yours. I would make a modest notional contribution to be used as per discretion of your illustrious principal in the way he deems fit. An amount of rupees 1,01,000 will be sent to HMI. And having taken this small step, I would urge the corporate world that they must come forward. They must come forward to associate themselves with this unique organization that will be magnetic and leave a very good image. I am saying so for one reason.
I come here physically for the first time, but when my brother came here, everyone in the school knew about it. The badge he used to sport carries a different meaning. I wish you well, all the members of the faculty, enormously talented, those who have won the prizes, those who are participating in the blood bank. And I'm sure there will be more occasions for me to connect with HMI. I have taken a personal decision that since North Bengal and Darjeeling are of critical consequence for the state, as governor, I should be spending here time proportionately. That will give me an occasion to be more in touch with HMI as well. Best wishes to all of you. This is for the first time I am having some indirect communication with members of the media in Darjeeling. I have a plan to connect with members of the media after November 8, and I am sure I will be enlightened by the interaction we will have beyond a press meet. Thank you so much. आप सभी को हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जो आज का प्रोग्राम है हमारा 66 रेजिंग डे है इंस्टीट्यूट का। 4 नवंबर 1954 को हमारे इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डे रखा गया था और इसी फाउंडेशन डे को हम हर साल मनाते हैं। आज 66 एनिवर्सरी है HMI का। और इसके साथ साथ हमने तेंजिंग नॉर्वे MTV चैलेंज जो कि 27 मई के आसपास प्लान था, बिकॉज ऑफ कोविड दैट गोट पोस्टपोन, तो उसको हमने अपना जो है 2 नवंबर को रेस ऑर्गेनाइज़ की थी और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमने आज अपने एनुअल डे के साथ कंबाइन किया है। ये रेस में कहाँ से पार्टिसिपेट किए? रेस में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक वर्चुअल रेस है और एक एक्चुअल लाइव रेस है। एक्चुअल लाइव रेस दार्जिलिंग में हुआ है, मुंगपू से शुरू हुआ था और वो टाइगर हिल पे जाकर के एंड हुआ था, जिसका डिस्टेंस कुल मिला के 35 किलोमीटर था। रेस के दौरान पार्टिसिपेंट चतकपुर सेंचुरी से भी गए थे, जो कि ऑफ रोड एरिया है, आप सभी ने देखा हुआ इलाका है। एंड जो डिफ़िकल्टीज थी इसमें आप देखेंगे मुंगपू से लेकर के 3 माइल तक पूरा अप स्लोप है, करीब 18 किलोमीटर का, बहुत ही टफ टेरेन है, अप स्लोप। उसके बाद जब आप ऑफ रोड आते हैं चतकपुर सेंचुरी के अंदर, वहाँ पे पूरा ऑफ रोड है, बोल्डर्स है, कच्चा रास्ता है, वहाँ साइकिलिस्ट ने काफ़ी अच्छा नेगोशिएट किया जंगल के रास्ते में। फिर चतकपुर से बाहर निकल के फिर से जो मेन हाईवे पे आने के बाद जोर बंगला से सभी राइडर्स ऊपर टाइगर हिल तक पूरा अप स्लोप है। सो डिफ़िकल्टी लेवल हुआ वेरी हाई। जैसे कि हम तेंजिंग साहब के नाम की इवेंट करते हैं तो चैलेंज भी उन्हीं के तरह स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना चाहिए। हाँ जी, इस बार कहाँ से पार्टिसिपेट आए थे? बाहर से? इस बार अगर आप देखेंगे तो हमने इस इवेंट को 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था और विद इन 1 मंथ ऑफ नोटिस भी पता ही था कि कोविड सिनेरियो क्या रहेगा, कितने लोग आ पाएंगे, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। सो इसमें जो है अभी पार्टिसिपेंट ज़्यादातर दार्जिलिंग से थे, कालिम्पोंग से थे, सिलीगुड़ी से थे, दैन दिल्ली से, JNK एरिया से और रांची से, झारखंड से, इस तरह के ज़्यादा पार्टिसिपेंट। और साथ ही साथ हमें खुशी है कि
शॉर्ट नोटिस होते हुए हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी 3 से 4 राइडर्स ने आके पार्टिसिपेट किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दार्जिलिंग में भी काफ़ी रेस के साथ उत्साह आते जा रहा है और काफ़ी जो यंगस्टर हैं दे आल्सो गेटिंग टू साइकिलिंग। मेरे को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में साइकिलिंग को यहाँ प्रोत्साहन मिलेगा और जो हमारे यंगस्टर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आगे जाके इंटरनेशनल रेस में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ वी आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो है ओलंपिक इवेंट है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एरिया है उसको और डेवलप करें ताकि हम यहाँ पे दार्जिलिंग के स्टूडेंट जो बच्चे हैं और जो यंग जनरेशन है उनको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैव ओपन दैट सच क्विक रिएक्शन टीम कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बैच के अंदर 40 के ट्रेनिंग्स दार्जिलिंग लोकल्स को सर्च एंड रेस्क्यू का बेसिक ट्रेनिंग कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है फरवरी एंड तक करीब दार्जिलिंग से 400 यूथ को एक टीम तैयार कर सकें जिनको सर्च एंड रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट की बेसिक ट्रेनिंग आती हो, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर लोगों की जान बचा सके और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। ये प्राइज दिस इज द फर्स्ट टाइम सर। दिस इज सेकंड एडिशन ऑफ द रेस। प्राइज मनी No. Prize money total amount is 1.5 lakhs rupees, which will be distributed along with the medals and a certificate to all the winners of the event. The race event was open event. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन पार्टिसिपेट के अलग प्राइज हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ रेस वाज ओपन रेस इन ओपन इवेंट्स। इट्स अ कॉमन प्राइज एनीवन हु सिक्योर फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिकॉज we did not distinguish, we do not discriminate man or woman. Of course they all are equally good, they are having an equal fighting spirit, and the lady riders can do wonders and they are doing wonders. So that is why we have made this event an open event. सर रेस्क्यू टीम दिस इज द फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट। देखो, हालांकि अगर आप देखेंगे भारत सरकार की तरफ से इन ऑल द स्टेट्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट दे हैव द डिजास्टर रेस्क्यू मैनेजमेंट टीम, लेकिन एक आम आदमी जो होता है, जो कॉमन पर्सन, एम इज़ दैट टू ट्रेन हिम, ताकि जब मान लीजिए चौरस्ता में कुछ होता है तो जो भी एक यंगस्टर आसपास कहीं घूम रहा हो, स्कूल पढ़ रहा हो, उसके पास खबर पहुंचती कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया है, तो वो पास से वहाँ भाग के जा सकता है हेल्प करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि मेन डिजास्टर टीम जो यहाँ पे कहीं और सिंह मारी में बैठी है या एच में बैठी है वही जाके वहाँ रेस्क्यू करे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम इसको अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है और उम्मीद करते हैं सबके सहयोग से, भारत सरकार की सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से, डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से हम सभी को कम से कम दार्जिलिंग के अंदर 400 लोगों को ट्रेनिंग दे सकेंगे। कहीं भी अगर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है या किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी शख्स जो नियर बाई होगा, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो या कोई व्हीकल जो है रोड साइड से टॉपल हो गया है, वहाँ पे रेस्क्यू जरूरत है, आप सब वेट करने की जगह जो भी कोई नज़दीक हो वहाँ पहुँच के जो डिस्ट्रेस पर्सनल है उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे गवर्नर महोदय का प्लान अचानक बना और कल शाम का हमारे पास सूचना मिली कि वो यहाँ पे जू में और HMI में घूमने आ रहे हैं। तो सीइंग द ओकेशन दोनों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल था, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की इफ़ ही लाइक टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द ओकेशन, ही काइंडली एक्सेप्टेड दैट ऑफर एंड विद शॉर्ट नोटिस विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोटोकॉल ही एग्रीड फॉर दैट। दिस इज व्हाट आई कैन से। उनसे हमने जो भी काम किया है उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कॉन्सेप्ट जो हमने बताए हैं, गो ग्रीन कॉन्सेप्ट, दार्जिलिंग को साफ़ रखना है, गंदगी भगाने की कोशिश करना है, कूड़ा कचरा टूरिस्ट आतंक को रोकने का है, हमारे छोटे छोटे मोहल्ले वहाँ पे हमें क्लीनेस ड्राइव शुरू करने का है। क्विक रिएक्शन टीम का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया उसमें मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से लोग जुड़ें, उनको हम 7-7 दिन का ट्रेनिंग कराएंगे ताकि हर किसी को कम से कम बेसिक टेक्निक आना चाहिए लाइफ में किसी की मदद करने के लिए। ये हमारा एम रहेगा। साथ ही साथ MTB रेस जो हमने बताया है उसका 3rd एडिशन भी विल ट्राई टू रेज इट टू अ नेक्स्ट लेवल, ताकि और दार्जिलिंग का नाम हो और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट और एथलीट यहाँ पर आए। थैंक यू। पहिला अगाडिको वर्ष पनि आएको थियो यही गेममा, सो त्यतिखेर चाहिँ अब म लोटेर राम्रो गर्न सकेको थिइनँ, अनि योचोटि चाहिँ अब बेस्ट नै दिन्छु भनेर आएको थिएँ। सो आई डिड
अब खुसी लाग्यो तपाईँको यो प्यासन हो साइक्लिङ कि तपाईँको हबी हो यो मेरो प्यासन हो प्यासन हो यो छोडेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब? बाँकी म अब अरू बारिस्टा गर्छु प्लस अब साइक्लिङ जस्तै नर्मल सिकाउँछु अनि साइक्लिङ टुरहरू गर्छु माउन्टेनमा त्यस माउन्टेन बाइकिङ टुरहरू गर्छु अरू चाहिँ प्रायः चाहिँ गेमलाई नै प्रिपेयर गर्छु यसभन्दा अगाडि तपाईँले पनि प्रोफेसनली योलाई चुज गर्नुभएको त्यसै भन्न सकिन्छ सकिन्छ तपाईँको कहाँबाट आउनुभएको अहिले म चाहिँ नेपाल पोखराबाट पोखरा त्यहाँ तपाईँको इन्स्टिट्युट छ ट्रेनिङ गराउने होइन सेल्फ नै हो सेल्फ अहिले जुन चाहिँ देश पुरा दुनियाँमै कोभिडको यो छ होइन त्यसमा तपाईँले अब साइक्लिङ गरेर या स्पोर्ट्सबाट चाहिँ तपाईँको एजको या युथलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हेल्दी रहनुहोस् अरू त केही नै होइन अब तपाईँले स्पोर्टलाई अब एथलेटिक्सलाई अब जे पनि गर्दा हुन्छ तपाईँले साइकल नै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन हामीसँग रनिङहरू छ हो अरू धेरै कुराहरू स्विमिङहरू छ सो तपाईँले जुन स्पोर्टलाई सिलेक्ट गर्दा पनि त्यो तपाईँको इच्छा हो तपाईँको आफूलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो गर्नुहोस् मलाई माउन्टेन बाइकिङ राम्रो लाग्यो माउन्टेन बाइकिङमा पनि धेरै क्याटेगोरीहरू हुन्छ रोड बाइकिङहरू हुन्छ डाउनहिलहरू इन्ड्युरो क्रस कन्ट्री हो सो म चाहिँ माउन्टेन बाइकिङ क्रस कन्ट्री गर्छु सो मलाई एकदम मनपर्छ किन भन्दा अब टेक्निकलहरू हुन्छ आफूले हार्डवर्क गर्नुपर्छ सो तपाईँहरूले जुन स्पोर्ट लिँदा पनि तपाईँलाई बेनिफिट चाहिँ सबैले राम्रै दिन्छ तर साइक्लिङमा चाहिँ मलाई चाहिँ साइक्लिङ मनपर्छ सो आई मिन साइक्लिङ छ यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँले कुनै उसहरू जित्नु भएको छ? इभेन्टहरू हजुर जितेको थिएँ नेपालमा लाइक पोखरा आइबी स्टेज रेसहरू जितेको थिएँ सो अनि नेसनल च्याम्पियनमा थर्ड भएको छु सो अनि त्यस्तै अब डिस्ट्रिक्ट च्याम्पियनहरू भइरहेको छु यो लास्ट इयर पनि तपाईँले यो एमटिभी च्यालेन्ज आइटम गर्नुभएको थियो गरेको त्यही लास्ट इयर कुन पोजिसनमा? लास्ट इयर अब टप 10 बाइकहरूलाई खासै हामीले यहाँबाट चाहिँ यो पोजिसन आयो भनेर चाहिँ इन्फर्म भएको थिएन सो मलाई त्यतिखेरको चाहिँ मेरो आफ्नो ऊ चाहिँ थाहा थिएन आई गेस मेरो विचारमा अन्डर 20मा थियो होला सायद अन्डर 20मा आउनुभएको थियो योपालि एकैचोटि जम्प गरेर वानमा पुग्नु फर्स्टमा होइन कस्तो लाग्दैछ? जस एक्साइटिङ रमाइलो भनौँ न एक्चुली अब मभन्दा अगाडि भएकोले पनि अलिकति मिस्टेक गरिदिनु भयो अनि त्यो भएको हुनाले पनि मैले अन्तिमसम्म फिनिस लाइन क्रस गर्दासम्म मैले चाहिँ म सेकेन्डमा छु भनेर आई वाज थिङ्किङ थिएँ मैले सोचिरहेको थिएँ तर पनि त्यहाँबाट क्रस गरेपछि ल यु आर द फर्स्ट भनेर अब कङ्ग्रेचुलेसन दिँदा चाहिँ अब सक्ड अनि अब त्यो जस मलाई एकदमै खुसीकै टाइमिङ भयो भनौँ न जस मलाई एकदमै खुसी आई वाज ह्याप्पी रमाइलो सबैजना मेरो हिक्मत बिगर म चाहिँ 7 भन्नाले अब 7 वर्ष जति हुन लाग्यो अहिले चाहिँ तपाईँको अहिलेको एज चाहिँ कति हो? अहिले त 23 तपाईँले अहिलेसम्म सबभन्दा ठुलो प्राइज देख्न सक्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो प्राइज त आई गेस क्यासमा चाहिँ यही नै होला तर अचिभमेन्ट चाहिँ अरू नै छ स्टेज रेसहरू 4 दिनको रेसहरू तिनीहरूको त्यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा अहिलेसम्मको ठुलो रेस भनौँ अनि अर्को नेसनल भइहाल्यो नेसनलमा पोडियम अनि क्यास प्राइज आई गेस आई थिङ्क यही नै हो तपाईँ जुन चाहिँ यो यहाँ लिनु बाट अब लाइक अनलाइन फर्महरू पनि थियो तर हामीले यहाँको मान्छेहरूलाई अलिकति दाइहरूलाई पहिलाको वर्ष पनि आएको हुनाले यहाँको दाइहरूलाई नै चिनेको थियो सो उहाँहरूको थ्रुद्वारा फर्महरू इन्ट्री गरेर चाहिँ हामीले पार्टिसिपेट गर्यौँ अनि दाइहरूको पनि लाइक आउनु खेल्नुपर्छ लाइक मोटिभेसन हुन्छ तपाईँहरू बाहिरबाट आइदियो भने अरू पनि लाइक एक्साइटेड हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो अनि हामीलाई पनि अब खेल्न मन लागेको भएर अब एमटिभी च्यालेन्ज हो अनि जो दार्जिलिङ एकदमै मनपर्ने ठाउँ भएर चाहिँ अनि जस आइराख्न मन लाग्छ छ होला हुनु पर्यो हुन्छ दिनुहोस् त Thanks for coming. Convey regards to Commander. यार क्या बोलते तो वहाँ पे चल निकला नहीं अभी